Good afternoon. Can you hear me with my mask or should I remove it? Are you okay? It's better now? Good afternoon. I'm sure all of you will have heard the Honorable Prime Minister speak last night to the nation. You will have heard the Honorable Prime Minister speak last night to the nation. He laid out a vision, a comprehensive vision. And that vision was laid out after wide and deep consultation with several sections of our society. And these discussions were held at various levels, with various ministries, and also gradually taken up to the level of the Prime Minister's office, and the Prime Minister himself has been spending considerable time to make sure that the inputs obtained are given due consideration and they form a part of the package that's being given to the country. Essentially, this is to spur growth and to build a very self-reliant India. And that's where this whole initiative is called as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And the word Atmanirbhar India is the one which you will be hearing me say quite often. I know, coming from South India, a lot of people wondered what it actually meant. So for their benefit, I'll just say what it means in the four languages, subject of course to perfectionist corrections. Suya Sarbu Bharadam in Tamil, Suya Adharita in Telugu, Suyam Asarittan in Malayalam, and Swayam Avalambita in Kannada. Subject to correction, it may not be the perfect translation, but something to take it closer to what it means. So Atmanirbhar Bharat is what we are talking about. And you heard the Prime Minister clearly say that this is going to be resting on 5 important pillars. 5 important pillars: the economy, infrastructure, technology-driven systems, demography, and demand. So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production in today's language. Factors of production, all of us know that we've been hearing it: land, labor, capital, and enterprise. Today we recast it, say it the same way, but then essentially referring to the very same factors of production, but in this Atmanirbhar Bharat, our focus therefore would be on those factors of production which are land, labor, liquidity, and law. So essentially it addresses issues of ease of doing businesses, ease of doing compliance and regulations being due diligence observed, and so on. And in this, the intention is to build brands. Intention is also to take local brands and build them to a global level. So there is a global value chain integration also as a part of this vision which the Prime Minister has put before us. Certainly when he says Atmanirbhar Bharat, it is not to look inwards and cut India to become an isolationist country.
It certainly talks about a confident India which can rest on its strengths and also be able to contribute to the globe, the way in which the Prime Minister rightly pointed out. The production of PPE and masks and also ventilators to an extent has rapidly grown within these 40 days. We have the capability, we have the enterprise to build such capabilities and help the world with it. And therefore India shall continue contributing to the globe. You've also been seeing, I'm moving away from Prime Minister's last night's speech, you've been seeing that the government being led by Prime Minister Modi, even in 2014-19 regime, was a listening, was a sensitive and also was a responding government. And that is why I list before you the various reform-driven steps which have been successfully taken. It's important for us to recall that now. Even as we talk about building a new India, building an India which is going to be Atmanirbhar. If I were to group them into different categories and list out what has been done by this government, even in between 2014 and 19, if you were to talk about the poor, we had the DBT-based reforms, based on which today, as we look at the migrants, look at the poor, look at the lockdown in their lives and the impact it has made in their lives, the DBT enabled us to directly put money into their accounts, and they didn't even have to go to the bank to collect it. The bank mitras were able to come and deliver the money. बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हमारी सरकार ये मुमकिन कर पा रही है कि लोगों को सीधे पैसा पहुंचे. Accounts based on Aadhaar and based on mobile technology has brought a revolution in this country, which many countries do recall now, and many of them are not able to do it, although India is able. माइक्रो इंश्योरेंस की स्कीमें, So for the poor, आवास योजना, उज्ज्वला the योजना, micro insurance schemes, PM Awas Yojana, इन सब के जरिए लोगों को मुफ्त कुकिंग गैस made it possible for people to have मुमकिन हो cooking पाया. gas in the last 3 months. It wouldn't have been उज्ज्वला possible स्कीम to के जरिए reach ही out ये to the poor मुफ्त to have their कुकिंग cooking गैस उन तक gas पहुंची. given unless स्वच्छ the भारत Ujjwala अभियान scheme और was so आयुष्मान भारत successfully implemented. गरीबों के Swachh लिए Bharat Abhiyan and Ayushman Bharat. उठाए गए कदम है. And therefore for the poor, during the last tenure, the several schemes which benefited were all reform driven. कृषि के If I were लिए to talk फसल about पीएम फसल agriculture बीमा in the योजना, same spirit, PM Fasal Bima Yojana, PM Kisan Yojana, which again has come इनके out जरिए handy, लॉकडाउन के that वक्त we भी were हम able to किसानों तक पैसा front पहुंचा load पाए हैं. the money to the Kisan during this lockdown. Otherwise it wouldn't have been कृषि possible. सिंचाई योजना, Creating new इन fisheries सब के जरिए department, रिफॉर्म लाया गया Krishi कृषि क्षेत्र Sinchay में. Yojana, were all aimed at bringing reform in agriculture. Similarly, talking of business and also trying to bring in पब्लिक better सेक्टर business बैंक्स में environment. PSB cleanups have बेहतर happened. व्यवस्था की गई. Cleanup सिस्टम after क्लीनिंग जिसे वो कह रही हैं. heavy load of phone banking resulting in NPAs, public sector banks ईज ऑफ recapitalization, डूइंग बिजनेस रिफॉर्म यानी FDI liberalization, बिजनेस करना ease of कैसे doing आसान बने. business reforms, which were taken down to the third level of IDC, GST administration reform, governance, IBC reforms, इन सब के GST जरिए reforms, लॉकडाउन and का today because of इम्पैक्ट the हम GST समझ पाए reforms, कि you're able to see जो what लघु impact उद्योग है उन पर क्या हो रहा है. lockdown is having on small and medium businesses. And National finally, Highway Authority, reforms in other areas, very quickly to एयरपोर्ट recall. प्राइवेटाइजेशन, National Highway Authority, the TOT plans, the airport privatizations, power sector reforms, which इन सब के जरिए हम सरप्लस वाला मुल्क बन पाए. country from shortages always. 175 gigawatts of solar targets out of 86 gigawatt has already been achieved out of that number. And cleaning up of the coal mine इन sector. सब के बारे में मैं These are पहले all चर्चा करना चाहती things हूँ, which I would want to जिसके बाद recall here हम before we आत्मनिर्भरता talk अभियान about के बारे में बढ़ेंगे क्योंकि इसी से नींव रखी गई है इस पूरे अभियान की. This is the foundation. This is the credential with which the Prime Minister गरीबों के खाते has में always सीधे been on पैसा the पहुंच side रहा of है. इसी reform, रिफॉर्म के जरिए reform जो भी हम for योजनाएं better living ऐलान in this करेंगे उन country, सब का ease of फायदा living in लोगों this तक country. पहुंचेगा. नमस्कार. कोविड-19 में
देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भरती है। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं, कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रह ना जाएं, तो उसकी भी छूट 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर आरबीआई के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है, तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसकी विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो। और यही नहीं, हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्व गुरु बना सकें, उस लायक हम बनाएं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं। और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े, इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है। बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों का दिया है। मैं यही कहूंगा, बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो, या आज के संकट के समय भारत में पीपीई और मास्क के निर्माण की बात हो। और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है। और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है, इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं। 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसके विस्तार में हम लोग जानकारी दें। तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं। लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा। So I broadly explained about the reform steps which were taken during the previous 14 to 19 tenure of this government. And after the 2019 elections, the July budget was presented. Post that, immediately in this very hall, we met several times over several fortnights when we had to respond to the call of
the hour, the need which was felt by the SMEs and many others. And all this only to underline the fact that you're speaking with a sensitive, a responsive, and a government which believes in consultation. हमारी सरकार लोगों से बातचीत में भरोसा रखती है, संवेदनशीलता में रखती है, but soon after came Corona. लेकिन बजट के फौरन बाद कोरोना आ गया। The parliament session was concluded. संसदीय सत्र खत्म होने के बाद लॉकडाउन का ऐलान हुआ गरीब कल्याण और पीएम गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई, जिसका जिक्र राज्य मंत्री ने किया। जो उस वक्त पैसे दिए गए थे वहीं से हम शुरुआत करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 41 करोड़ बैंक खातों में, जनधन अकाउंट में ये पैसा गया था। जो अनाज भी ट्रांसफर किया गया था, गेहूं और चावल दोनों का वितरण किया गया। 69 करोड़ में खातों में ये पहुंचा था। 71,738 metric tons of pulses have been distributed to 6.25 crore cardholders. Aside from this, non-cardholders have also been distributed grains. कार्ड होल्डर्स और जिनके पास नहीं है उन्हें भी अनाज वितरित किया गया। Distribution of free cylinders. Divyang and old age pensioners have all been also given. और बुजुर्गों के लिए भी जो पेंशन जिन्हें मिलता है उन्हें भी सहायता दी गई। लॉकडाउन के कुछ ही घंटों के अंदर और फिर 1-2 दिन के अंदर ही ये ऐलान किया गया गरीब कल्याण पैकेज का, और वहां से शुरुआत हो गई सहायता देने की। Due diligence related deadline dates which were postponed so that ease of compliance could come in. Beginning today, आज से शुरू हो करके, I come over to speaking about today. Beginning today, आज से शुरू कर रहे हैं। few days, अगले कुछ दिनों तक coming with this entire team मैं रोज इस टीम के साथ आपके सामने आऊंगी, put out the details of ताकि हम डिटेल्स रख सकें the vision which PM has put उस forth yesterday. सोच और विजन के बारे में जो पीएम ने कहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की सोच सामने रखी है, beginning today, and we shall not forget, और हम ये नहीं भूलेंगे that we are talking about, that we do have a responsibility towards the poor of this country, ताकि हम गरीबों की तरफ जिम्मेदार रहे, जरूरतमंदों की तरफ जिम्मेदार रहे, मजदूरों की तरफ, विकलांगों की तरफ और बुजुर्गों की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। Suitably bringing grouped items which have some correlation. Alongside, you also had the Reserve Bank of India coming up with a lot of liquidity infusion. RBI भी काफी पैसा आने वाले दिनों में बाजार में लाएगा। लिक्विडिटी के जो डेटा है वो आने वाले दिनों में उसकी जानकारी दी जाएगी। मैं उस हिस्से में नहीं जा रही, वो डेटा आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा। We also ensured, the Revenue Secretary is here, we also ensured that 18,000 crores 18,000 करोड़ through a special drive were given for all the income tax. एक स्पेशल ड्राइव के जरिए टैक्स पेयर्स का drawback were also given the payment. ड्रॉबैक दिया So गया। the intention being liquidity should be in the hands of the people. लिक्विडिटी लोगों के हाथों में होनी चाहिए, इसलिए हमने ये पहले की। Dues, we cleared it. 14 lakh taxpayers have benefited because of that. So 14 लाख टैक्स पेयर्स को इससे फायदा भी हुआ। The tranche has about 15 different measures. 15 अलग अलग कदम का जिक्र होगा, which pertain to the micro, small and medium जिसमें enterprises. 6 माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 6 कदम हम उठाएंगे। 2 relate to the employees provident fund. 2 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से लगा हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस एंड 2 कदम एमएसएमई के फाइनेंसिंग जो हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उससे जुड़ा हुआ है। 1 relates to DISCOMs
One relates to contractors, एक डिस्कॉम्स के लिए, one एक कॉन्ट्रैक्टर्स relates के to लिए real estate, और एक and रियल एस्टेट के लिए। are tax measures that we have taken. So I'll get into the detail of today's tranche of announcements. I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. कोलैटरल This फ्री will ऑटोमेटिक give लोन facility to एमएसएमई क्षेत्र में 3 दिया lakh जाएगा। crores. 25 crore outstanding for those MSME units for 25 whom करोड़ 25 crore उन is the outstanding MSMEs के loan, लिए or 100 crores whose turnover is जिनका will टर्नओवर benefit from 100 this. करोड़ है, उनको इससे फायदा These मिलेगा। loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. 12 These महीने are का going to be मोरेटोरियम दिया जाएगा। 100% credit guaranteed 100% over, क्रेडिट गारंटी as a इन cover लोन्स given में दिए to जाएंगे। banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. 31 अक्टूबर से ये लागू होगा। There are no guarantee fees. कोई no गारंटी fresh फीस नहीं ली collaterals जाएगी required. और ना ही कोई So कोलैटरल। I guess this will benefit 45 lakh units. 45 so that लाख they can यूनिट्स को resume their business इस activity लोन का फायदा होगा and also safeguard jobs. और इससे नौकरियों की भी सेफगार्ड होगी, यानी सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया, पिछले महीने भी और इस महीने भी। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो। और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए, 500-500 रुपये, 1000 रुपये उनको टोटल डाला गया। इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे, ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने 1-1 सिलेंडर देने की बात हुई थी, जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए। यहां तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2,000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी, उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है, आम आदमी की बात है, कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए, घर से बाहर नहीं जाते थे, तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके, उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी 3 महीने आगे बढ़ाया गया, जिससे उसको लाभ मिला है। आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की, उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है, जिससे को लाभ मिला है और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है। केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की जरूरत पड़ी तो उसको किया है। एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ, मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सब का एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का
मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के भारत के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। I just move to the next one, which is about a 20,000 crore subordinate debt proposition which we are bringing. If the earlier one, which was just now explained by the MOS, was for standard MSMEs who, because of lockdown, couldn't move forward because they didn't have money, they didn't have cash coming in. So for buying raw materials or paying the wages, if they had a problem, you had that emergency credit line which we spoke about just a minute ago. Now I come to talking about subordinate debt through which we want to infuse about 20,000 crores. These are meant for stressed MSMEs. So if you're providing for the standard, you're now providing for the stressed MSMEs. Now the stressed MSMEs do have a problem of equity. So for them, through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. 2 lakh MSMEs are likely to benefit from this. MSMEs को दी जा रही है जिससे उनको फायदा होगा। NPA or are stressed, all of them will be eligible. For this subordinate स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, यानी लॉकडाउन की वजह से परेशानी में है, जो NPAs है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या फिर जो स्ट्रेस में है, उन सबको इसका फायदा होगा। As its contribution to the CGTME, MSE, the Credit Guarantee Trust, and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks, as a result of which stressed and NPA MSMEs will immediately benefit. चुनाव में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग है, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए किया गया है, ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली MSMEs को दिया जाएगा। The next of the MSME linked steps that we are taking, this is the third. There is a fund being created for infusing about 50,000 crore. 50,000 करोड़ इक्विटी डालने के लिए MSME में ये फंड में फंड बनाया जा रहा है। Those MSMEs who have the potential and जिन who are viable. MSME में So we spoke about those who are standard, पोटेंशियल है, यानी वो आने वाले वक्त में अच्छा कर सकते हैं। Now I'm talking about अब हम जो तनाव में स्ट्रेस में थे, NPA थे, उनसे निकलकर उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिन MSMEs में आने वाले वक्त में उम्मीद है और वो बेहतर कर सकते हैं। एक फंड ऑफ फंड्स होगा, 10,000 करोड़ का कॉर्पस होगा उसका, एक मदर फंड और डॉटर फंड के इस फ्रेमवर्क के जरिए हम उनको विकास के लिए पैसा देंगे और इसके जरिए MSMEs को अपने अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी करने में, एक्सपेंशन में, काम बढ़ाने में फायदा मिलेगा और मार्केट में भी वो लिस्ट हो पाएंगे। जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की, क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। The next one is something which all of us have been waiting for a long time, about the definition of MSMEs. I'm sure you heard from several sources. अब हम आपको MSME की क्या परिभाषा है वो बता दें। इस पर बहस हो रही थी। हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम बता सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। हम इसकी परिभाषा MSME क्षेत्र के फायदे के लिए बदल रहे हैं। That if they outgrow the size of what is defined as an MSME, कई बार MSME से आगे निकलकर सफलता के बाद वो MSME के परिभाषा से आगे निकल जाते हैं, लेकिन उन सबको इसका फायदा मिलेगा। Therefore, MSMEs prefer to remain within the definition rather than MSME हमेशा चाहते हैं कि सफलता के बावजूद वो इसी क्षेत्र का फायदा उनको मिलता रहे। change in the definition of MSME, हम परिभाषा बदल रहे हैं they need not worry about growing, ताकि वो चिंता ना करें कि वो इस परिभाषा से बाहर निकल जाएंगे और उनको फायदे मिलते रहेंगे। they had got. So now how do we change it? तो हम कैसे परिभाषा बदलेंगे? Changing the definition. How are the changes being brought about? What exactly is the change which is coming in? The change is that investment limit which defined an MSME is being revised upwards. So you can be a slightly more larger invested company, but you're still going to be considered only as an MSME. आप में ज्यादा निवेश भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप MSME के ही परिभाषा में दायरे में आएंगे। The idea is, even with an increased investment, ज्यादा निवेश के बावजूद आप MSME में ही रहेंगे, उसी के दायरे में रहेंगे और आपको उस दायरे का लाभ मिलता रहेगा। To define an MSME is being brought in, and that criteria is based on turnover. So that is being एक क्राइटेरिया टर्नओवर है। Earlier it was only investment size. पहले सिर्फ निवेश के आधार पर तय किया जाता था, अब टर्नओवर के भी आधार पर MSME की परिभाषा होगी। Earlier the distinction which prevailed between manufacturing unit and therefore their definition was on slightly different account. Service units, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट की परिभाषा सब अलग अलग रहती थी। अब ये फर्क मिटाया जा रहा है, चाहे आप उत्पादन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस एंटरप्राइज हो, दोनों की ही परिभाषा एक ही तरह से होगी। What was earlier and what is now. What was earlier defined with an investment of 25 lakhs as micro unit 25 लाख में माइक्रो यूनिट पहले होता था, वो अब 1 करोड़ तक के निवेश के लिए माना जाएगा। 1 करोड़ तक निवेश है तब भी उसे माइक्रो यूनिट MSME में ही माना जाएगा। Were called as micro earlier. Now because the distinction is removed, service also will have the benefit of being called a micro unit. तो सर्विस में भी अब आप अगर हैं तो वहां पर भी 1 करोड़ तक के टर्नओवर पर आप माने जाएंगे माइक्रो यूनिट। 1 करोड़ के निवेश में, माफ कीजिएगा, हम टर्नओवर में भी इसी तरह से परिभाषा बदल रहे हैं। आपका निवेश 1 करोड़ तक हो सकता है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन आप फिर भी आप माइक्रो यूनिट कहलाएंगे। निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन आप माइक्रो यूनिट की ही परिभाषा में दायरे में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सर्विसेज वाज अप टू 2 crore. नाउ द डेफिनेशन इज चेंज्ड टू, चाहे आप उत्पादन में हो या सर्विस सेक्टर में हो, दोनों में ही अगर MSME में 1 करोड़ तक निवेश हो और 5 करोड़ तक टर्नओवर, तो आप माइक्रो यूनिट ही कहलाएंगे। लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे
तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं, चौथी बार एमपी बन गया, कब से शुरू हो रही आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया ही गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शन आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। I move to the fifth step in the MSMEs. I said total 6 measures are getting announced today. Of the 6, the fifth one is that for government procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender route. Meaning, global tenders will be disallowed in government. इजाजत नहीं होगी जब सरकारी प्रोक्योरमेंट यानी 200 crores 200 करोड़ तक जब सरकार प्रोक्योर करेगी तो ग्लोबल टेंडर्स की जरूरत नहीं होगी। Units, as you may call, big, large companies, who they were serving all the while. Suddenly the conditions became, based on the global tenders, unmatchable by our MSMEs. So they were disqualified from supplying to companies for whom they actually grew as ancillary units. As a result, many of our MSMEs were not anymore able to participate in supplying products to many of these large units. MSME कई बार लार्ज यूनिट को सप्लाई करने में अवरोध पाते थे और इसीलिए 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। ये एक बड़ी राहत और इसी के जरिए एमएसएमई के लिए अपना व्यापार कर पाना ज्यादा आसान होगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक बड़ी पहल होगी। आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के जरिए आगे बढ़ेगा। और पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में
कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। The sixth step towards MSMEs is post-COVID trade fairs, exhibitions are going to be very difficult. So we shall ensure that e-market linkage is provided across the board for all these MSMEs so that they're able to find their market easily in the absence of being able to participate in trade fairs which cannot be held in this environment. मार्केट तक ज्यादा उनकी पहुंच हो पाए, क्योंकि ट्रेड फेयर ऐसे वक्त पर नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार और CPSE जहां पर MSME के रिसीवेबल्स यानी जो कुछ वहां से आता है उनके जरिए अगले 45 दिनों में सारे रिसीवेबल्स क्लियर किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will honor every MSME receivable within the next 45 days. हर रिसीवेबल का सम्मान होगा आने वाले 45 दिनों में सरकार की तरफ से। एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSUs में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। I now move to talking about EPF. अब हम EPF के बारे में बात करेंगे। During the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए EPF के लिए कुछ उसी वक्त कदम उठाए गए थे। यूनिट्स which have 100 workers, जहां यूनिट्स हो, जहां पर 100 लोग काम करते हो, EPF from the funds, वहां पर 15,000 से कम कमाने वाले लोग EPF से पैसा ले सकते हैं क्योंकि उनके हाथों में कम पैसा है। Also was given relaxation. What I would now to say, like to say before you is liquidity relief. एक लिक्विडिटी रिलीफ हम दे रहे हैं EPF establishment. सारे EPF एस्टैब्लिशमेंट के लिए। In this 12% is paid by the employer and 12% by the employee contribution. 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। The support which Government of India gave for another 3 months. जो हमने सहायता दी थी वो अगले 3 महीनों के लिए हम बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। April and May 20 up to May 2020. हमने the payments were made into their 2020 eligible तक दिया था accounts by Government of India for March, April and May. Nearly 3.6 lakh establishments benefited. लगभग 3.6 लाख liquidity relief संस्थाओं को इससे फायदा हुआ। 2,500 crores to 72.22 lakh employees is now being proposed to be provided आने by वाले वक्त में extending इसको एक्सटेंड this करके contribution for the next और 3 भी months also. लोगों को फायदा पहुंचाया July, जाएगा। August, जुलाई, June, July and August जून, जुलाई और अगस्त 2020, तीनों the महीने EPF में इसे contribution एक्सटेंड किया जा रहा है। will be paid by Government of India EPF and this का shall जो provide कंट्रीब्यूशन है 2,500 वो सरकार crore की तरफ से liquidity support. दिया जाएगा। So what was given earlier for March, April and May, जो मार्च, अप्रैल और मई के महीने में दिया जा रहा था वो जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक June, July दिया and जाएगा। August
and therefore we shall be infusing 2,500 crore 2,500 करोड़ लिक्विडिटी 72.22 सरकार की तरफ lakh से दी जाएगी employees will benefit from it. और इतने एम्प्लॉइज को फायदा होगा। 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। The next on EPF again, in order to provide more take-home salary for the employees, ईपीएफ पर ज्यादा टेक होम सैलरी काम करने वालों को मिले the payment of PF, और एम्प्लॉयर्स को भी फायदा हो which have not been covered under earlier, जो इस स्कीम में which is कवर नहीं we हुए have हैं। 100 employees, 100 एम्प्लॉई हैं, 90% of whom are drawing less than 90% को 15,000, 15,000 से we कम की announced तनख्वाह the मिलती है। which I'm extending for another 3 months. That's what was ये 3 announced. महीने के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ये अभी हमने The 1 मिनट second पहले one अनाउंस in किया था। अब EPF दूसरा है now ईपीएफ is में the statutory PF contribution स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन, यानी जो मैंडेटरी है, जो देना ही पड़ता being है, reduced from 12% वो घटाया जा रहा है 12% से 10% किया जा for the रहा है। next 3 months. अगले 3 महीनों के लिए Employers need to pay only 10% and not 12%. जो एम्प्लॉयज हैं, नौकरी देने वाले हैं, Their hands. वो 10% देंगे। For the central public sector enterprises and for state PSUs, सेंटर और जो स्टेट we will पीएसयूज continue हैं, to पब्लिक pay सेक्टर 12%. यूनिट्स हैं, So this reduction is वहां not for पर the 12% ही देना However, पड़ेगा। government employees be government employer still pays 12%. गवर्नमेंट But employees in these public sector undertakings will be given the advantage of paying only 10%. पीएसयू में जो कंपनी है उसकी तरफ से देने जाने वाला पैसा 12% ही होगा, लेकिन जो नौकरी पेशा है इन सरकारी संस्थाओं में उनको फायदा मिलेगा, वो 10% ही देंगे। For the next 3 months. ये अगले 3 महीनों के लिए लागू किया जा रहा है। एक और प्रावधान, क्योंकि आज के समय पैसा कर्मचारी के हाथ में भी कैसे ज़्यादा हो, इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा, लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा, और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपया ज़्यादा इनके हाथ में आएगा। The next one is about non-banking financial companies, housing finance corporations, and microfinance institutions. We have been अगला है hearing, हाउसिंग कॉर्पोरेशंस के in लिए। spite of a lot of steps which the RBI took, in spite RBI of ने कई operations कदम that we उठाए made between the July budget and February budget, जुलाई और फरवरी बजट के बीच, लेकिन ये देखा गया एनबीएफसीज को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। Some NBFCs which were not very highly rated had खास तौर पर ऐसे एनबीएफसी जिनकी रेटिंग बहुत हाई नहीं है, उनको बाकियों के मुकाबले ज्यादा दिक्कत हुई। 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी स्कीम इनके लिए खास तौर पर अनाउंस की जा रही है। इसमें निवेश प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन में ये किया जाएगा, जहां पर निवेश This is taking and buying
debt papers of NBFCs, housing finance corporations and microfinance institutions. And इन not high संस्थाओं के quality debt खरीद और papers, बिक्री में they can be investment quality papers. also. So this we expect will have an impact on those struggling NBFCs who जो need एनबीएफसी इस वक्त भी संघर्ष कर रहे हैं, जिनको पैसा चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, उनको इससे फायदा होगा। funding MSMEs. और ये वही एनबीएफसीज हैं जो फंडिंग कर रहे हैं एमएसएमई के, तो इस पूरे नेटवर्क को इससे फायदा होगा। एनबीएफसीज को मिलने वाले इस फायदे से एमएसएमई में पूरे क्षेत्र में फायदा होगा। They will be fully guaranteed by Government of India. We hope that this will also bring in a lot of difference for NBFCs who have access to small and micro units, and therefore we want to ease the flow of credit through these NBFCs who have only not so good वित्तीय कंपनियां NBFCs या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार देगी। The next facility also for the NBFCs is to give एनबीएफसीज के लिए एक और फायदा है 45,000 crore liquidity infusion. 45,000 करोड़ का Guarantee इंफ्यूजन scheme पैसा वहां पर दिया for जाएगा। the NBFCs in particular. This is an existing scheme, but we ये are पहले से expanding its स्कीम है, scope. लेकिन हम इसे और भी Expanding विस्तार its कर scope रहे हैं। only because it will now cover borrowings such as primary bond issued, the commercial papers. So all these will constitute the liability side of the balance sheet, but we are getting into that area also. But in this case, as different from the previous one, 20%, the first 20% loss alone will be borne by the guarantor, which is Government of India. The first 20% loss. So in this again, AA rated papers below and also below that will all be included. Even unrated papers will be eligible for investment. This we think will help many of the microfinance institutions, and with this, if money goes into their hands, even based on unrated papers, we guess they will have liquidity to reach out to the MSMEs who may be in the far-flung areas. जहां पहली 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी गारंटी स्कीम लेकर आए थे, लिक्विडिटी स्कीम लेकर आए थे एनबीएफसीज के लिए, एचएफसीज और एमएफआईज के लिए, वहीं पर अब आंशिक ऋण गारंटी योजना ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की एनबीएफसीज का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार गारंटर होगी, जो 20% का नुकसान इसके द्वारा सहन किया जाएगा, वहन किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें AA और इससे भी नीचे वाले जो है उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं ताकि ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ सके, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और कुल मिलाकर इससे भी नई लैंडिंग जो है, यानी कि कर्जा दिया जा सके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। I move over to talking about the DISCOMs. अब हम डिस्कॉम्स के बारे में बात करेंगे। DISCOMs today are facing unprecedented cash flow problems. डिस्कॉम्स को They पैसे के desperately need बहाव help. की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है Otherwise, और they उनको are सहायता unable की to pay the जरूरत है, power generating companies. लेकिन You know, नहीं तो वो all the पावर states, जनरेटिंग DISCOMs are in कंपनियों serious को crisis. पैसा नहीं दे पा रहे हैं। So in डिस्कॉम्स order to बहुत help संकट them, के दौर से गुजर रहे हैं। There is उनकी a मदद के लिए liquidity
emergency liquidity injection. Emergency which is happening to the injection. extent of 90,000 crores. 90,000 करोड़ का Now हम ये the Power Finance Corporation, दे रहे REC, the Rural Electrification Corporations, both of them put together will infuse liquidity of 90,000 crores to all the DISCOMs against 90,000 all the करोड़ सभी receivables DISCOMs that they को have. They're दिए sitting there जाएंगे। without getting paid. In turn, they are not able to pay the GENCOs. In turn, the GENCOs are wondering where they will have more money to pay for producing electricity. And at a time when we are talking about Atmanirbhar Bharat, at a time when we are also rightly claiming the credit for having made India a surplus power generating country, we've reached a stage where DISCOMs don't have money because they're sitting with receivables. So we are now डिस्कॉम्स making a रिसीवेबल्स के साथ बैठे where हैं और उनके DISCOMs पास don't have पैसा money नहीं है because कि they're sitting with वो receivables. आगे दे सके। So we are now making a provision, a one-time provision. ये for एक बार का PSCs and provision है, RECs to infuse that money into the जिसके DISCOMs जरिए ये पैसा against their इन डिस्कॉम्स में receivables. And डाला who in जाएगा। turn, this will be done with the state issuing guarantees. ये राज्य को गारंटी देनी होगी इस बात की जो पैसा हम दे रहे हैं उसकी गारंटी राज्यों से ली जाएगी। इस गारंटी के साथ कि वो जेनकोस को उसके बाद पैसा देंगे डिस्कॉम्स और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। इससे आम व्यक्ति को क्या फायदा होगा? हम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को कह रहे हैं जो भी फायदा पहुंचता है ये फाइनल कस्टमर लोगों तक पहुंचे, उनके खाते में आए, उनके हिस्से में आए। जो भी ये फायदा है वो सीधे कंज्यूमर को जो कि बिजली का उपयोग करता है उस तक पहुंचना चाहिए। बिजली वितरण कंपनियों की आय में जो भारी कमी आई है और लेनदारी जो इनके कई राज्यों से बढ़ी है उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। I move to the next, which deals with contractors. कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करेंगे। All Government of India agencies, जितनी भी सरकारी such as the एजेंसियां हैं, railways, road transport, highways, रोड CPWD, ट्रांसपोर्ट के लिए, etc., हाईवे, will now सीपीडब्ल्यूडी give सबके 6 लिए months extension 6 महीने का without एक्सटेंशन any देंगी cost to the contractor, बिना किसी भी so that कॉस्ट के उन that कॉन्ट्रैक्टर्स को, extension should cover ताकि इस construction एक्सटेंशन work के जरिए जितना भी कंस्ट्रक्शन or का goods and काम, निर्माण का services काम करना contracts है that they have with central government agencies. या They can फूड एंड take सर्विसेज का जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनका to भारत सरकार के comply साथ with है, the contract conditions. उनको ये छूट मिलेगी सरकार की तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस या फिर उनके कमिटमेंट्स हैं उनमें। So the extension is up to 6 months is what I'm तो इसको आगे बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए। Construction, this shall cover construction work or निर्माण cover कार्य, even goods and services contract. गुड्स और सर्विसेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें It भी will also cover completion of works and काम intermediate खत्म करने की जो मियाद है milestones that they may have. या जितने भी माइलस्टोन्स यानी निर्धारित वक्त पर जो काम तय करना था, खत्म करना था, उसमें उनको रियायत दी जाएगी। So even the concessional periods will get extended up to जो कंसेशनल पीरियड यानी उनकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा वक्त बढ़ाया जाता है उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। which they can obtain. Government agencies will partially release bank guarantees to the extent of the partially completed contracts. So if a particular contract is completed to some extent and not fully, to that some extent, the
partial bank guarantee will also be released. पार्शियल बैंक गारंटी यानी जितने का काम हुआ होगा, जितने हिस्से का काम हो जाएगा उतने का उनको 200 करोड़ तक के मिलेगी ये गारंटी। टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी, उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती है, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है। केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज किया। किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज्यादा है ताकि वो कामकाज में उसको कहीं दिक्कत ना आए। I've come to the last two of today's announcements. One relate to the real estate, which is what I'm doing now. The next has direct taxation related reliefs, which has 3 different aspects. So the last two, one is on the real estate and the next is on the taxation. In the real estate matter, the Urban Development Ministry अर्बन shall issue डेवलपमेंट मंत्रालय advisory to the एडवाइजरी states जारी and करेगा the union territories, राज्यों को और so that यूनियन the टेरिटरीज regulatory को, authorities ताकि जो are given रेगुलेटरी clear अथॉरिटी picture है वो एक that सही they can तस्वीर दे। treat the COVID-19 period as an event COVID-19 where you can को invoke the force measure. In other words, they can treat it as an act of God. And to Act that of extent, God be इसे flexible बनाया जा about सकता है। the execution of the contract signed. This will also mean that ये राहत देने with के the लिए है। necessary changes, they will have to issue fresh project registration certificates. फ्रेश They can प्रोजेक्ट extend the रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट registration दिए and the जाएंगे completion dates. और जो कंप्लीशन के So, डेट है to यानी do it निर्माण कार्य by पूरा करने की 6 तारीख है वो months सब बढ़ाया for जा all सकता है 6 registered महीने। projects इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी expiring जो on or प्रावधान है before उसके तहत मानकर 25th March 2020. So using the force measure on रियायतें clause, दी जाए। they can suo moto extend the registration and completion date by 6 months if रजिस्ट्रेशन की तारीख project और was registered निर्माण on कार्य or खत्म करने का जो अवधि है, तारीख है, उसे बढ़ाया जा after सकता है 25th March अगर 2020. 25 मार्च So there 2020 need not be के individual बाद इसे applications किया गया है। separately for it. They can अलग-अलग so to do it. अकेले They can also issue लोगों fresh की project इसके लिए registration गुजारिश नहीं चाहिए, certificates चिट्ठियां नहीं चाहिए। automatically. जिसका भी If उसके this बाद is 25 मार्च 2020 के बाद So this way रजिस्ट्रेशन और people who had entered कंस्ट्रक्शन into a के लिए आगे contract बढ़े हैं उन सब पर and ये got लागू कर दिया fixed जाएगा। because of the coronavirus will not suffer. These measures we think will de-stress developers. इससे जो and डेवलपर्स हैं real उनको estate industry, फायदा होगा which is और जो already in difficulty, तनाव से गुजर रहे हैं, बहुत सारा मुश्किलों से है, उनको इससे लाभ मिलेगा। कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो ये प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सुओ मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे
बढ़ा दिया जाए और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी यही अनुरोध किया गया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाएं। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई है इसमें विस्तार में कही गई। I move over to talking about the tax-related proposals, which is my last. अब टैक्स से You're जुड़े हुए fairly familiar with प्रावधानों the का जिक्र TDS होगा। and the TCS tax deductions which happen. जितने भी We have टैक्स now from, Deduction let us say, होता है। tomorrow till 31st March 2021, reduce the TDS rates and the TCS rates by टीडीएस और 25% टीसीएस of the दोनों ही existing रेट को rate. 25% So if the घटाया existing rate is जाएगा 100, मौजूदा it will रेट be से। reduced by 25%. And this shall apply to all payments, if they are payment for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage. जितना भी All of भुगतान these होना है will be eligible कॉन्ट्रैक्ट के for काम this के लिए 25% या ब्रोकरेज के लिए, उन rate सबको ये reduction. 25% रेट रिडक्शन Through का this, फायदा मिलेगा And as I टीसीएस और said, टीडीएस। this will be coming into force from tomorrow. ये कल से ही and शुरू हो last जाएगा, till लागू हो जाएगा March 31st, 2021. और ये And अगले this, we साल think, मार्च this reduction, we तक think, चलेगा। will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS. This reduction alone is going to give 50,000 crores back to the people, in the sense it will be in their hands rather than coming in as payment of taxation. जो टीडीएस रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और टीसीएस रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यानी कि अगर मेरा 100 रुपया बनता था तो मैं 100 रुपये की बजाय अब 75 रुपये दूंगा और उसमें 25% की कटौती की गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत गैर वेतनभोगी इन सबके लिए, नॉन सैलरीड पेमेंट टू रेजिडेंट्स, इनके लिए की गई है। The next is a set of dates which are getting extended for direct tax, some of the measures that we are taking. All pending refunds to charitable trusts and non-corporate businesses and professions, including that of proprietorship, partnership, LLP and cooperatives, shall be issued immediately. I did mention at the beginning that we have already refunded quite a lot of refunds which were either 5 lakhs or lesser to individuals who waited for their refund for a long time, and through that nearly 14 lakh people had benefited. Now we are saying that the pending refunds of all charitable trusts, non-corporate businesses, professions, proprietorships, partnerships, LLPs and cooperatives, many of whom can be very small. Many of these are in cooperative sectors, many are MSMEs, many are small partnerships. All their refunds will be given immediately, which will mean that they will get their due money, that's their money, they will get it back in their hands without any delay. Then the due date of all income tax returns for the year 2019-2020 are now being extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020, and tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. So that is a measure
which will help people not to worry about how they are going to do their compliance, will they be able to file their returns or not. So that is a step which we take. And the last one, which also is a taxation related measure, is the date of assessments getting barred, because assessment time gets barred with a certain date. We are conscious of it, we have taken cognizance of it, so we are saying date of assessments getting barred as on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 2020. So 3 months extension is being given so that date of assessment doesn't get barred as of September 2020, it can wait till December 2020. And also, those getting barred on 31st March 2021, we are saying this in advance, those getting barred as of 31st March 2021 are being extended to 30th September 2021. They're a clear, again 6 months extension for those March. We are telling that in advance. 31st March 2021, which we are getting debarred, will now be moving over to 30th September 2021. And the last point that I would want to share with you all for this evening is, you know, we've launched this Vivad Se Vishwas scheme for making payment, and there was a component that you had to pay 10% extra if it is beyond a certain date. Now, without any additional amount which is to be paid, in total, the whole Vivad Se Vishwas scheme is getting extended up to 31st December 2020. And for this extension, no extra payment is being asked. So the entire Vivad Se Vishwas moves over to 31st December 2020. 5 लाख तक के रिफंड 14 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वापस कर दिए गए थे। उसके अलावा जो उससे ऊपर वाले उसकी भी प्रक्रिया शुरू, और बहुत सारे लोगों को वो भी वापस कर दिए गए हैं जो रिकॉर्ड समय के अंदर किए गए। अब इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड्स हैं, चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों, ट्रस्ट के हों, या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस या प्रोफेशंस के हों, यानी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव्स, इनको भी जल्द ही इनके रिफंड्स इशू कर दिए जाएंगे ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा, और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जहां तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है, ये भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, और जो वर्जित हो रही थी 31 मार्च 2021 को, इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। मैं एक बार फिर कह देता हूं, जो डेट ऑफ असेसमेंट्स जो बार हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, और जो बार हो रही थी 31 मार्च 2021 को, उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी, जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना, एडिशनल अमाउंट दिए बिना, इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि आप 2020 31 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर का, MOS फाइनेंस का, फॉर डिटेल्ड briefing to all of us on these particular subjects. Madam, with your permission, 2 questions we are going to take online and 4 questions we can take from the hall here. So first I take the question online. How does the government plan to finance rupees 20 lakh crore stimulus?
maybe this is a question I should answer after I finish all my announcements on the various tranches. But government has also given a slightly altered schedule, the borrowing schedule. So that is one of the ways, that is, I repeat, that is one of the ways in which we are also expecting to finance. But the other details about how exactly are we going to get financing this will be probably more appropriately answered after we finish announcing all the tranches. Okay. Number 14. मेरा सवाल यही है कि बोरिंग्स को लेकर के पहला सवाल था, इस पे थोड़ा सा अगर आप और बताना चाहें कि इतने बड़े पैकेज के लिए सरकार फिलहाल बोरिंग को लेकर के क्या योजना है, आने वाले वक्त में किस तरीके का और प्रावधान करने की योजना है। और दूसरा ये कि जो बैंक गारंटी, जो लगातार बैंक पिछले 2-3 महीने में ये इस बात को लेकर के चिंतित थे कि कुछ सेक्टर्स पर लोन देने के लिए वो ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे थे और बैंक गारंटी, सरकार से गारंटी को लेकर के वो लगातार अपील कर रहे थे। ऐसे में आपको लगता है कि इस बड़े पैकेज के बाद में बैंक की तरफ से लोन देने की शुरुआत हो पाएगी और लिक्विडिटी फ्लो की जो कोशिश है उसको कामयाबी मिलेगी? मैं आपके सेकंड क्वेश्चन को जवाब दे देती हूँ, बट फर्स्ट क्वेश्चन अब शायद दोबारा बोलना पड़ेगा, मैं ध्यान से शायद सुने नहीं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं जवाब ये दे रही हूँ कि ये गारंटी का विषय जो आपने उठा रहे हैं कि बैंक से भी मांग था, उसके लिए तो आज गारंटी का विषय भी हमने घोषणा कर चुके हैं। सो उसके कारण हम ये मानते हैं कि बैंक्स में थोड़ा और तैयारी होगी। मगर वैसे भी पिछले एक सप्ताह से बैंक सेक्रेटरी इधर देवाशीष पांडा जी हैं, लगातार कितने बैंक से क्रेडिट जा रही है, किन को जा रही है, एमएसएमई की जा रही है, रिटेल सेक्टर को जा रहे हैं, ये विषय हम फिनेंस मिनिस्ट्री के हैंडल से और पीआईबी के द्वारा भी जानकारी देते आ रहे हैं। इसमें हम स्पष्टता से ये समझें कि बैंक्स लोन देने से संकोच नहीं कर रहे हैं। सैंक्शन किए हुए लोन्स हैं जिसमें बैंक का ये कहना है कि सैंक्शन करने के बाद भी कस्टमर आकर के लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम आकर लेंगे, प्लीज तब तक आप पैसा रिलीज ना करें। ऐसे रिक्वेस्ट कस्टमर रख रहे हैं बैंक के सामने। मैं ये नहीं कह रही हूं सभी कस्टमर्स ऐसे बोल रहे हैं, मगर ज्यादातर कस्टमर्स ये बोलने की वजह से सैंक्शनड लोन का विवरण हम दे रहे हैं हर 2 दिन के एक बार, फिर भी वो अमाउंट रिलीज क्यों नहीं होता। और ये भी प्रश्न उठते हैं कि क्यों बैंक्स रिवर्स रेपो में, रिजर्व बैंक में लगातार पैसा डाल करके आ रहे। कारण यही है कि सैंक्शन करने के बाद भी क्लाइंट्स उनके अपने चॉइस पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन निकालने के बाद, हटने के बाद हम पैसा रिलीज करवाएंगे आपसे। सो ये भी है विषय, हम इसका पूरे हर पहलू अंडरस्टैंड करने का आवश्यकता है। योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ऑल राइट, That's covered. Number 12. I'm Sapna here. Very good afternoon. Ma'am, 2 questions. A lot of queries are coming from various quarters that after the announcement of the additional borrowing by the government last Friday of 4.2 lakh crore approx, how much is of that's going to be taken care in terms of meeting the revenue gap, ma'am? And the stimulus which you've just mentioned. And ma'am, in today's announcements, would you be able to give us any indication as to what would be the cash outgo by the government? I think your first question is largely addressed already about where are we going to get the money from, and is the debt market going to be able to receive the announcement that's been made by the government last Friday. Yes, you're seeing how the market is responding, and that's no secret. It's not something anyone can hide. It's public domain information. I have broadly indicated the amounts. But in any case, end of the all the announcements, 4 or 5 announcements, you'll get to know. And in any case, the Honorable Prime Minister has clearly said what is the total size of the stimulus package. Ma'am, related question online hai. Does the package announced by the Prime Minister yesterday is a standalone one, or it is inclusive of earlier package of 1.7 lakh crore and
the other security item, 65 lakh crore liquidity measures announced by the RBI. Does this all? As I said, whoever has asked that question online can wait till all the announcements are made. Here. Number 9. मैम मोनिका जी बिजनेस मैम एमएसएमई सेक्टर में पहले से ही बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच था और यूके सिन्हा कमेटी ने ये सारी रिकमेंडेशंस पहले से ही दे दी थी, तो इतना समय क्यों लग गया? क्या हम लॉकडाउन का इंतज़ार कर रहे थे? और दूसरा ये कि अप्रैल के जीएसटी नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं, तो एमएसएमई सेक्टर से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं और वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक जीएसटी एमनेस्टी स्कीम उनके लिए आ जाए, तो क्या हम उसकी आशा कर सकते हैं? एमएसएमई के लिए अभी इतने सारे घोषणा, पता नहीं मुझे क्यों आप उसको लॉकडाउन के लिए हम इंतजार के, कौन इंतजार करते हैं जी लॉकडाउन के लिए? आप क्षमा कीजिए, मुझे कैसे उसका जवाब देना है पता नहीं चल रही है। मगर एमएसएमई के लिए हम धीरे धीरे जुलाई बजट में भी घोषणा किए, उसके बाद पार्शियल गारंटी का अनाउंसमेंट भी हुआ, फरवरी के बजट में भी एमएसएमई के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाए, और अभी कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रेस्ड हो, एनपीए हो, सस्टेनेबल और वायबल यूनिट्स हो, उन सब के लिए अलग अलग हिस्से पर एमएसएमई के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं। और जीएसटी रेवेन्यू के ऊपर रेवेन्यू सेक्रेटरी को मैं बोलूंगी कि प्लीज। नंबर 30। आपने जो सवाल पूछा कि जीएसटी का जो अप्रैल महीने का फिगर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, आपको मालूम है कि जीएसटी के जो रिटर्न्स फाइलिंग के डेट्स है वो सब एक्सटेंड हो गए हैं। एक बार जब अगर एक्सटेंड कर दिया जाए कि हमने बहुत सारे रिटर्न्स कहा है कि जून तक भरना है, या जो 5 करोड़ से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको भी हमने टाइम दिया है, तो एक्सटेंशन देने के बाद अब जो ये जो फिगर्स है इसके बारे में स्पष्ट स्थिति जो है सो हमें 30 जून तक ही मिल पाएगा हमें। तो इसीलिए हम लोगों ने उस फिगर को अभी तो जो लोग पैसे दे पा रहे हैं वो दे पा रहे हैं, बाकी लोग 30 जून तक उनको अवधि दी गई है, उसके बाद ही हमें स्पष्ट स्थिति मालूम पड़ेगा कि कितना पैसा आया, किन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। जहाँ तक कि आपने एमएसएमई की बात की, जीएसटी रिफंड इस एक महीने में, अप्रैल महीने में टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब 11,000 करोड़ लोगों को जीएसटी का रिफंड दे दिया गया है। 11,000 करोड़ एक महीने में, और उसकी संख्या भी मैं बताऊं अगर, तो करीब 27,000 लोगों को आईजीएसटी का रिफंड मिला है, और जो बाकी जो जीएसटी का जो रिफंड है करीब 1,39,000 लोगों को जीएसटी का रिफंड मिला है। Madam Sunil Prabhu, NDTV. Just 2-3 points. One, of course, was on the fiscal deficit. Where do you keep the target now? Because this is something that nobody visualized it. Prabhu, just may I intervene? Please focus your question on today's briefing part, because as Madam told, It's part of that, sir. 4-5 series briefing will be here, so please focus for the today's briefing. That is one part of it, madam. The fiscal deficit and, the states asking for FRBM and, certain measures which you have been part of the deliberations in that aspect. The second is that when you say the EPF and this package that is being given to MSMEs, especially, there is unemployment that is taking place. How are you going to safeguard that, through various measures vis-a-vis this? And what exactly is the outlay that we are envisaging in terms of from the finance minister? You've actually sort of spread like a bird's eye view of what's going to come. So I might want you to wait for the next announcements. 33. That's why I said it's 33. मैम मैं शैलेश हूँ एनआई से। मैम एमएसएमई को लेकर आपने तमाम हैं, उसमें 2-3 तो क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। एक तो जो एमएसएमई की डेफिनेशन आपने चेंज करी है उससे कितनी कंपनीज को बेनिफिट होगा, और जो 200 करोड़ से ऊपर के जो टेंडर हैं जो फॉर ग्लोबल टेंडर्स आते थे, कितने लोग जो हैं उससे, कितने ग्लोबल टेंडर्स उससे बाहर हो जाएंगे। और मैम एक सवाल मेरा ये है कि जो आज आपने अनाउंसमेंट करा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 लाख करोड़ का जो आप लोगों ने टारगेट करा है, उसमें से कितना इसमें अनाउंस हुआ है या अलग है कुछ? मैं ये प्रश्न जो आपने उठाया ग्लोबल टेंडर के विषय में, कोई बाहर नहीं होंगे लोग, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं ना। अगर ग्लोबल टेंडर का आवश्यकता नहीं
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।